Hare Krishna, Dandavat Pranam Prabhuji. Prabhuji, we welcome you from Sridham Vrindavan uh, in Kanaya Desh, and we are greatly thankful to you, Prabhu. You are giving us your divine association from Sridham Vrindavan in the month of Kartik, and today is more auspicious day. It is a Bahulastami. So it is a great fortune of all of us here, Prabhu, who are not able to be in Vrindavan, but by your association and by hearing from you, Prabhu, all we are in Vrindavan now. We feel like we are in Vrindavan. So we are so grateful of you, Prabhuji, for giving your so precious time. We know that in this month you will be too busy in your own sadhana, in services, in Krishna Balram temple, which will be full of devotees more than the capacity. And even because of last year's lockdown, so more devotees would be in Sridham Vrindavan. So we are so thankful of you, Prabhuji, for giving us your time. And I will just introduce you, Prabhu, briefly to the devotees who are attending today, and then we will just hear the nectar from your divine self, Prabhuji. So Prabhuji is the disciple of His Divine Grace, Srila Prabhupada, who is founder Acharya of our society, SCON, International Society for Krishna Consciousness. Prabhuji joined in year 1975, and he was initiated by Srila Prabhupada in year 1976. And then Prabhuji was engaged in different services in his capacity. And then from year 1993, Prabhuji is serving as a temple president in Krishna Balram temple, Sridham Vrindavan. And whenever we visit there, so we we always have darshan of Prabhuji there in Krishna Balram temple. And when Prabhuji joined that time, Prabhuji was in USA, Buffalo, and he was a member of a local rock band, and Prabhuji was playing the drums. And at present, Prabhuji is a regular kirtaniya for 24 hours kirtan seva. So I will just introduce in हिंदी प्रभु जी. तो आज हम सब भक्तों का परम सौभाग्य है इस कार्तिक मास में, और आज का जो विशेष दिन है, आज बहुला अष्टमी, जो राधा कुंड का आविर्भाव है, और प्रभु जी हमारे साथ में श्रीधाम वृंदावन से जुड़े हुए हैं. तो ये हम सब लोगों के लिए जो वहां पर नहीं है, ये बड़ा सौभाग्य है. और प्रभु जी का संक्षिप्त जो परिचय है, प्रभु जी ने श्रील प्रभुपाद का जो आश्रय है वो सन 1975 में लिया, और प्रभु जी की दीक्षा श्रील प्रभुपाद द्वारा सन 1976 में हुई. और उसके बाद बहुत सारी सेवाओं में युक्त रहने के बाद में सन 1993 में प्रभु जी इस ग्रेस पंच गौड़ प्रभु उन्होंने जो वृंदावन में कृष्ण बलराम मंदिर है उसके अध्यक्ष की सेवा ली, और प्रभु जी अभी भी उस सेवा में अपनी सेवाएं श्रीधाम वृंदावन में जो एक अध्यक्ष के रूप में दे रहे हैं. और ज्वाइन करने के समय जब प्रभु जी ने ये संस्था ज्वाइन की, उस समय वो यूएसए बफेलो में थे, और वो वहां पर एक जो रॉक जो म्यूजिक का एक ग्रुप होता है, उस ग्रुप में वो जो ढोल ड्रम होते हैं उसको बजाने की सेवा करते थे. और आज के समय में अन्य सेवाओं के साथ में प्रभु जी जो 24 घंटे का जो नित्य कीर्तन होता है, उसमें प्रभु जी का नियमित सेवाएं प्रभु जी देते रहते हैं. सो हम लोग प्रभु जी से श्रवण करने के पहले प्रभु जी का स्वागत करेंगे 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करके.
Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Hare Rama, Hare Hare Rama, Rama Rama Rama, Rama Hare Rama Hare. Hare Hare Krishna, Krishna 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 Krishna, Hare Hare Hare, Hare 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 Rama, Hare Rama, Hare Rama Rama Rama, Rama Hare Hare. Rama Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare Rama, Rama Rama Rama, Hare Hare. Okay. Hare Krishna, Prabhuji. Hare If Krishna. it is comfortable with you, so can we go parallelly with Hindi translation, Prabhuji, as there will be more devotees who understands only Hindi. Okay. Yes. Yeah. Thank you so much. Thank you very much. Over to you, Prabhu. Over. Shri Radhakund Bahulastami ki. Jai. Shri Vrindavan Dham ki jai. Jai. It's a great honor and privilege to glorify the pure devotees, Krishna, Brajabhumi, Shri Vrindavan Dham, Shri Radhakund. Such an auspicious day. And go ahead. I'm sorry, you're translating. तो ये हम लोगों का परम सौभाग्य है कि हम लोगों को ये अवसर प्राप्त हो रहा है जहाँ पर हम लोग भगवान श्री कृष्ण उनके शुद्ध भक्तों की और राधा कुंड श्रीधाम वृंदावन का गुणगान कर पा रहे हैं. So we will offer our respectful obeisances to our real hero, Srila Prabhupada. तो हम सब लोग श्रील प्रभुपाद को अपना प्रणाम प्रथम देंगे, जो हम सब के नेता हैं. Namam Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharane Nirvishesha Shunyavad Paschachare Chitarane. You're right. It is Kartik time, people call it. Yes. So we're all very, very fortunate that Srila Prabhupada has saved us from rotting in this material world. तो हम सब लोग बहुत बहुत सौभाग्यशाली हैं कि श्रील प्रभुपाद ने हमें, जो हम लोग इस संसार चक्र में पड़े हुए थे, उससे उन्होंने हमको बचाया. Every day in Vrindavan is a festival day. वृंदावन धाम में हर दिन एक बड़ा त्योहार है. We hear how Purushottam is auspicious, Kartik month is auspicious, Bahulastami is auspicious, Govardhan Puja is auspicious. Every day is super spiritually charged in Vrindavan. तो हम लोग ये श्रवण करते हैं कि जो पुरुषोत्तम मास है वो बहुत शुभ है. कार्तिक मास बहुत शुभ है. बहुला अष्टमी का दिन ये शुभ है. तो इस प्रकार से प्रतिदिन ये त्योहार वृंदावन में होता है. Lord Krishna loves his devotees. He loves each and every part and parcel. तो भगवान श्री कृष्ण वो अपने सभी जो उनके भिन्न अंश हैं, सभी जीव उनको वो प्रेम करते हैं. The Lord manifests this world and provides a playground for the conditioned souls. भगवान ने ये जो भौतिक जगत है इसकी रचना की है, जहाँ पर जो बद्ध जीव आत्माएं हैं वो अपना कार्य कर सकें. So although there are so many planets and stars, this planet Earth is very special. तो भले ही बहुत सारे अन्य ग्रह हैं, लेकिन ये जो पृथ्वी है, ये जो भूभाग है, भूलोक, ये बहुत ही विशेष है. Mathura Vrindavan Dham, it actually is from the spiritual world. Krishna brought Sri Vrindavan Dham here because he wanted to descend here. तो श्रीधाम मथुरा और वृंदावन ये वास्तव में आध्यात्मिक जगत के धाम हैं, लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण को इस धराधाम में आना था तो भगवान इनको अपने साथ में लेके आए. So Krishna, he's exhibiting his pastimes with the cowherd boys, the cowherd girls, and the gopis.
भगवान अपनी लीलाओं को प्रदर्शित करते हैं, जो उनके गोप सखा हैं, जो गोपियां हैं उनके साथ में। Like you see a trailer for a movie, something to entice you to want to go and see. जिस तरह से जब कोई फिल्म आती है तो उसका संक्षेप में कुछ हिस्सा दिखाया जाता है जो आपको आकर्षित करता है उस फिल्म को देखने के लिए। So although the Lord is always appearing, 5,000 years ago, he appeared here in Vrindavan Dham, Mathura. तो भगवान समय समय पे अवतरित होते रहते हैं और 5000 वर्ष पूर्व भी भगवान ब्रज में, मथुरा में वो प्रकट हुए। At that time, 5,000 years ago, the Kuru family was having some political disputes. उस समय जो कुरु वंश था उसमें कुछ राजनीतिक उनके भेद थे परिवार में। They were all descendants of Maharaj Kuru, and Duryodhan, Dhritarashtra's side of the family were known as Kauravas, but Pandu's sons, the Pandavas, were called the Pandavas. तो ये सब जो राजा कुरु थे, महाराज कुरु, उनके वंश में आते हैं, जो धृतराष्ट्र, दुर्योधन और जो पांडु पुत्र हैं, लेकिन जो पांडु के पुत्र हैं उनको पांडव कहा जाता है। Because the kings are to uphold Brahminical culture and protect the citizens by leading them to the goal of life. तो जो राजा होते हैं उनका कर्तव्य होता है कि वो स्वयं जो ब्राह्मण के जो कर्तव्य हैं, गुण हैं, उनको वो अपने जीवन में अपनाएं और इस प्रकार से जो प्रजा है उस प्रजा की भी प्रगति करें, आध्यात्मिक प्रगति करें। So Lord Krishna delivered the Vedic knowledge to Lord Brahma. भगवान श्री कृष्ण ने जो वैदिक शिक्षा है वो पहले ब्रह्मा जी को दी। Only Krishna, the Supreme Lord, can give scripture or the laws of God. तो मात्र भगवान श्री कृष्ण वही हमको शास्त्रों को दे सकते हैं जिनमें भगवान के द्वारा दिए गए नियम होते हैं। There are two kinds of people in this world: the devotees, demigods, and the asuras, the non-devotees. तो इस जगत में बस दो ही तरह के लोग हैं, एक सुर हैं और एक असुर हैं, जो देवी देवता हैं और दूसरे जो असुर होते हैं। The difference is that the devotees and demigods, they hear about Krishna's magnificent, powerful, extraordinary activities, and they're enlivened, they're gladdened. But the demonic persons think these are all mythology, just stories. तो जो सुर हैं, जो भगवान के भक्त हैं और देवी देवता हैं, उनमें और असुरों में अंतर होता है। जो देवी देवता और भक्त होते हैं वो भगवान की लीलाओं को सुन करके उसमें वो भगवान के दिव्य गुण उनको अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, उनका गुणगान करते हैं, उनको अपने जीवन में अपनाते हैं। और जो असुर हैं वो उसको निरस्त करते हैं, वो उसको नहीं मानते। In this world, people believe the scientists and the historians and government recognized education as the absolute truth. इस संसार में लोग वो वैज्ञानिकों को, इतिहासकारों को या जो शिक्षा प्रणाली सरकार द्वारा निर्धारित की गई है उसको वो सही निर्धारित करते हैं। Those who are pious, they go to church, they go to temple, they go to mosque, and they pray to the Lord and seek spiritual knowledge and understanding. जो पुण्य जीव आत्माएं होती हैं वो मंदिर, गिरजाघर या मस्जिद, जो धार्मिक स्थान होते हैं, वहां पर जाते हैं और वो भगवान से जो आध्यात्मिक जो कृपा है उसको वो भगवान से मांगते हैं। So the Veda, this knowledge,
it reveals the process, how we can get disentangled from the knot of material existence. वैदिक शिक्षा हमको सिखाती है कि किस प्रकार जो हमारा ये भव बंधन है, इससे हम लोग मुक्त हो सकते हैं. Before we can fully appreciate Krishna and his loving relationships with his intimate devotees, we have to become free from the lust, envy, jealousy, greed. तो भगवान के बारे में कि भगवान अपने भक्तों के साथ में उनका मधुर संबंध कैसे होता है, उसको जानने के पहले हमको अपना हृदय जो अनर्थ है, काम क्रोध लोभ मोह, तो इनसे हमें शुद्ध करना हो. Today in Krishna Balaram Mandir, Satyanandana Maharaj, we had a great Guru Puja, Kirtan, and a very enlightening and inspiring class by Devi Shakti Mataji about Bahulastami, about Radhakund, the glories of Radhakund. तो आज श्री श्री कृष्ण बलराम मंदिर में परम पूजनीय सचिनंदन महाराज द्वारा जो गुरु पूजा है, बहुत दिव्य भव्य रूप से महाराज के द्वारा हुई. और जो बहुला अष्टमी का जो त्योहार है, राधा कुंड आविर्भाव, वो दैवी शक्ति माता जी द्वारा उस पे विस्तारित कथा हुई. So all of you should go to ISKCON Vrindavan and see and hear the lecture, because she gave very, very detailed information, but very relishable. You'll enjoy it very much. तो सब भक्त ये जो आज का प्रवचन है, उसको जो कृष्ण बलराम मंदिर का जो YouTube का जो चैनल होगा, वहां पर जाके हम लोग इसको श्रवण कर सकते हैं. तो माता जी ने बहुत विस्तार रूप से इस कथा को दिया, लेकिन ये बहुत मधुर है. इसका श्रवण करने के लिए ये इसका आस्वादन सब लोग कर सकते हैं. Krishna gave to Brahma, who gave to Narada, to Vyasadeva, Madhvacharya, the six Goswamis, Srila Bhakti Siddhanta, and Srila A.C. Bhaktivedanta Swami, Srila Prabhupada. He is carrying the powerful message of the Guru Parampara from Krishna to all of us. तो भगवान श्री कृष्ण, उन्होंने ये जो ज्ञान है वो ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया, नारद जी ने श्रील व्यास देव को दिया, और इस प्रकार से परंपरा में आते हुए श्रील प्रभुपाद, उन्होंने ये सारा जो हमारी धरोहर है उसको वो ले करके और उन्होंने हम सबको ये वितरित किया. Sri Chaitanya Mahaprabhu, Lord Nityananda, and the Pancha Tattva, they came to show by personal example how to live Bhagavad Gita and how to surrender to Krishna. तो भगवान चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, पंच तत्व, तो वो स्वयं आकर के उन्होंने ये प्रदर्शित किया कि कैसे हम लोग भगवत गीता की शिक्षा का पालन अपने जीवन में कर सकते हैं. Even 500 years ago, this Brahma Gaudiya Sampradaya, people were confused how to properly perform bhakti yoga. तो 500 वर्ष पूर्व भी जो ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय में जो भक्त आते हैं, तो वो उस समय भी भ्रमित थे कि कैसे हम लोग ये जो शिक्षाएं हैं. So we should have faith, because in scripture it describes the Lord appearing as Chaitanya Mahaprabhu and Lord Nityananda, the same Krishna and Balaram, to again steer us and guide us properly on the road back to Godhead. शास्त्रों में ये वर्णन है कि भगवान श्री कृष्ण और भगवान बलराम वही भगवान चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के रूप में अवतरित होते हैं और हमारा मार्गदर्शन करते हैं कि किस प्रकार हम लोग वापस भगवत धाम जा सकते हैं. Lord Chaitanya, in his Shikshashtaka prayers, prayed Nadanang, Najanang, Nasundaring, Kavitang, Vajragadisha Kamaye. I don't want wealth. I don't want sense enjoyment. I don't want followers. I just want to surrender
and be your servant life after life. तो शिक्षा अष्टकम के चतुर्थ श्लोक में भगवान चैतन्य वो शिक्षा देते हैं। वो कहते हैं कि मुझे कुछ धन नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पर कोई प्रसिद्धि नहीं चाहिए, मुझे कोई सुंदर स्त्री संग नहीं चाहिए, मुझे इस संसार का कुछ नहीं चाहिए। बस मैं ये आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मैं जन्मांतर आपकी शुद्ध भक्ति करता रहूं। When Lord Krishna appeared in this world with Balaram, also he brought all his friends and associates and lovers from the spiritual world so he can continue his loving exchanges with them on this earthly planet. तो भगवान श्री कृष्ण जब अवतरित होते हैं तो वो अपने साथ में बलराम जी को और अपने जो उनके शुद्ध भक्त हैं वो भी उनके साथ में आते हैं, जिससे कि भगवान उनका जो पारस्परिक प्रेम का संबंध है वो उनके साथ में आदान प्रदान कर सके। Chaitanya Mahaprabhu and Lord Nityananda appeared with all their associates in this age of Kali Yuga, performing the Sankirtan mission. भगवान चैतन्य और नित्यानंद प्रभु वो भी अपने पार्षदों के साथ में अवतरित हुए और उन्होंने जो संकीर्तन यज्ञ कलयुग का युग धर्म है उसको उन्होंने सबके लिए प्रदर्शित किया, उसकी शिक्षा हमको दी। And the six Goswamis, the intimate associates of Chaitanya Mahaprabhu, were government ministers, very, very wealthy, successful. They renounced everything for the benefit of all mankind. छह गोस्वामी हैं वो उस समय बहुत ऊंचे पद पे थे, धनी थे, भौतिक दृष्टि से हर तरह से संपन्न थे, लेकिन जो बद्ध जीवात्माएं हैं उनके हित के लिए उन्होंने उस सब का त्याग किया। And Chaitanya Mahaprabhu uncovered Vrindavan, uncovered Radhakund, Shyamakund, and the Goswamis have written about the realization of how to enter into that pastime of the Lord. तो भगवान चैतन्य उन्होंने इन स्थानों को ढूंढा जो राधा कुंड हैं, श्याम कुंड हैं, वृंदावन के जो लिप्त जो स्थान थे उनको उन्होंने ढूंढा और भगवान चैतन्य की कृपा से उनके निर्देश से जो छह गोस्वामी हैं उन्होंने इनके बारे में फिर सबको शिक्षा दी और उसको उन्होंने सबके लिए प्रकट किया वापस। All over the world, there are many religions and various cultures, but the essence of all religion and all culture is to awaken that inner happiness, that inner love for God. तो पूरे विश्व में कई धर्म हैं, कई तरह की सभ्यताएं हैं, लेकिन सबका सार है कि जो हमारा आंतरिक भाव भगवान के लिए है उसको हम लोग विकसित करें। And being the appearance of Radhakund today, this is an expression of Krishna made his Shyamakund when all the holy places came, and Srimati Radharani and all the gopis made their Radhakund. And this is for the benefit of all of the conditioned souls to come and have an experience of Krishna prem, love for Krishna. तो भगवान श्री कृष्ण वो श्याम कुंड उसकी स्थापना करते हैं उस लीला के अनुसार, और उसमें वो पूरे पृथ्वी के जितने पवित्र तीर्थ हैं उनका जल वो श्री श्याम कुंड में लेकर आते हैं, और उसके साथ ही फिर श्रीमती राधा रानी वो वहां पर जो राधा कुंड है उसको प्रकट करती हैं। और इसका उद्देश्य है कि सारे जो जीव आत्माएं हैं वो वहां पर जाएं और इसका संग लेकर उसका लाभ अपने जीवन में लें। So with gratitude and deep appreciation, we should thank Srila Prabhupada a billion times for saving us and giving us guidance to the purpose of life.
तो हमको श्रील प्रभुपाद का बहुत बहुत धन्यवाद हमको करना चाहिए कि उन्होंने हमको ये जो इस संसार की दावाग्नि है उससे हमको बचा करके और ये जो सारी दिव्य वस्तुएं हैं इनका दर्शन हमको करवाया। So, on behalf of all of you, my friend Shruta Kirti and myself are going to Radhakund this afternoon, and we'll take some drops on our head for everyone's benefit. तो प्रभु जी हम सबको आशीर्वाद देते हुए कह रहे हैं कि आज प्रभु जी के साथ में श्रीमान शुद्ध कीर्ति प्रभु दोनों संध्या समय में श्री राधा कुंड में जाएंगे और वहां पे जो राधा कुंड का ये पवित्र जल है उसको अपने सिर पर धारण करेंगे और हम सबको भी वो आशीर्वाद दे रहे हैं। तो we are so thankful to you, Prabhuji. You are just taking us also to Radha Kund. Thank you so much. We all want blessings, but when we read Bhagavatam, Srimad Bhagavatam, it says anyone who hears this beautiful pastime of the Lord will be liberated from the cycle of birth and death. तो हम सबको आशीर्वाद की आवश्यकता होती है। श्रीमद् भागवतम में ये बताया गया कि जो कोई भी इस श्रीमद् भागवतम का अध्ययन पठन करता है, श्रवण करता है, तो उसको इस भौतिक संसार के जो कल्मश हैं, कष्ट हैं, उससे वो उसको मुक्ति प्राप्त हो जाती है। We need to focus our attention to increasing our desire to read and hear about Krishna's pastimes, but read only Prabhupada's books. Best, let that be your foundation. Have a strong foundation first. तो हम सबको ये पूरा अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए कि हम लोग जो हमारे वैदिक शास्त्र हैं उनको हम लोग ध्यान पूर्वक से उनका पठन करें, उनको समझें और हमारे स्तर पे हमारे लिए ये विशेष रूप से आवश्यक है कि हम लोग पहले श्रील प्रभुपाद के द्वारा जो हमको शास्त्र दिए हुए हैं उनको हम लोग समझें और उन निर्देशों का पालन अपने जीवन में करें। Divine, this energy, Maya, Krishna's Maya, is difficult to overcome. We all become very proud and think we can do it on our own. जैसे श्रीमद् भगवद गीता में 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि मेरी ये जो माया शक्ति है ये भी दैवी है और इसको पार कर पाना ये लगभग असंभव है, लेकिन हम लोगों के अंदर में अज्ञानता के कारण जब अहम आता है तो हम लोग सोचते हैं कि मैं अपने बल पे ही इसको पार कर लूं। In this world, everyone wants to be the enjoyer. Everyone wants to be the proprietor. इस संसार में हर कोई वो भोक्ता बनना चाहता है या वो हर किसी वस्तु का स्वामी बनना चाहता है। But in the spiritual world, Krishna is the only enjoyer and everyone is his servant, but they also enjoy on a higher level. Krishna is the supreme enjoyer and everyone is serving Krishna. लेकिन आध्यात्मिक जगत में भोक्ता केवल भगवान श्री कृष्ण हैं और बाकी सब उनके सेवक हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण वो परम भोक्ता हैं और भगवान की सेवा करके सभी जीव वहां पर पूर्ण आनंद की अनुभूति करते हैं। Srila Narottam Das Thakur prays Vishaya Chadiya Kabe Shunek Kabe Hama Herabo Sri Vrindavana. When will I be able to see Sri Vrindavan? When the heart is clean from desire for sense gratification, then we will be able to appreciate the Dham, Sri Vrindavan. तो श्री नरोत्तम दास ठाकुर वो अपने एक भजन में कहते हैं कि विषय छाड़िया कबे शुद्ध हवे मन कबे आमी हेरी बो श्री वृंदावन, कि कब मेरा जो हृदय है वो विषयों से शुद्ध होगा और कब मैं श्री धाम वृंदावन का वास्तविक दर्शन कर पाऊंगा। तो ये हमारे लिए आवश्यक है कि हम अपना जो हृदय है वो अनर्थों से उसको हम लोग उसके अनर्थों को दूर करें। So in the first canto of Bhagavatam,
Lord Krishna became the chariot driver of Arjuna, Parthasarathi. तो भगवान श्री कृष्ण वो अर्जुन के सारथी बन जाते हैं और इसलिए भगवान को पार्थ सारथी कहा जाता है. Someone may question, well, he's God. Why couldn't he just adjust everything without having this big battle of Kurukshetra and, protecting the Pandavas from so many troubles? Why couldn't he use his mystic powers and fix everything? तो कई लोगों को ये प्रश्न आता है कि जब वो परम पुरुषोत्तम भगवान हैं तो उनको क्या आवश्यकता थी, इतना बड़ा जो कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ, क्यों नहीं उन्होंने इसको इस प्रकार से कर दिया कि वो पांडवों की रक्षा भी कर लेते. और इतनी जो बाहरी दृष्टि से समस्याएं देखी जाती हैं कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में कितने लोग वहां पे मारे गए, कितनी वहां पे स्थितियां उत्पन्न हुई, तो उनको ये प्रश्न आता है कि जब वो भगवान है तो उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया. How can the Supreme Lord take a subservient position to his devotee, Arjuna? कैसे कोई जो परम पुरुषोत्तम भगवान है वो उनके जो भक्त हैं अर्जुन, उनके उनसे निम्न जो उनका सेवा का एक स्तर ग्रहण करते हैं, ये कैसे होता है. And Bhishma, he's a great devotee, he's a Mahajana, but still, due to political reasons, he fought on the side of the Kauravas. जो भीष्म देव हैं वो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, वो महाजन हैं, लेकिन कुछ राजनीतिक कारणों से वो जो कुरु हैं उनका पक्ष लेते हैं. So I'm sure many of you have read Bhagavad Gita and Mahabharata and understand a little bit of the pastimes of the Pandavas and Kauravas. तो मैं आशा करता हूँ कि आप में से कुछ लोगों ने भगवद गीता और महाभारत का अध्ययन किया होगा और उसमें से ये जो कुरु वंश है, इस कुरु वंश में जो ये इतिहास बताया गया है, इसको आप कुछ समझते हो. So Krishna, he appeared as Vyasadeva, seeing the need of giving clear directions to society and individuals to achieve that awakening of love for God. तो भगवान स्वयं व्यास देव के रूप में आते हैं और वो देखते हैं कि किस प्रकार से जीवों को वो पूरा जो शिक्षा है वो दें, जिससे कि उनका जो सुप्त जो अज्ञान है उसको दूर करके और वो भगवत संबंधी ज्ञान उनको प्रकट करें. तो ऐसे शास्त्र देने के लिए श्रील व्यास देव भगवान वो आते हैं व्यास देव के रूप. It says that by the mercy of Guru and Krishna, one can understand or realize the purpose of the Vedic knowledge. तो गुरु की कृपा से कोई ये समझ सकता है कि शास्त्रों का जो ज्ञान है और उद्देश्य है वो क्या है. By genuine surrender in a submissive, humble mood with service, the Guru will reveal to you, and the Lord within the heart will give you that understanding. तो विनम्र भाव से सेवा करते हुए जो गुरु हैं वो ये ज्ञान हमारे लिए प्रकट करेंगे. Many times followers of the bhakti path are criticized as sentimentalists and not well educated. तो कई बार जो भक्त होते हैं उनको जो भावुक लोग होते हैं वो उनकी निंदा भर्त्सना करते हैं. Like Prakashananda Saraswati and the top sannyasis during Lord Chaitanya's time asked, you are Nimai Pandit, you're a scholar, why are you just chanting and dancing? जैसे वाराणसी में जो प्रकाशानंद सरस्वती थे वो भगवान चैतन्य से कहते हैं कि आप तो
सन्यासी हो तो क्यों आप ये नृत्य और ये कीर्तन कर रहे हो? Kali Kalir Dharma Krishna Nam Sankirtan. The religion for this age of Kali is the Lord's holy name, chanting the Lord's names. इस युग का युग धर्म है भगवान के श्री नाम का जप करना. So when we were having that kirtan today at Guru Puja, I saw that everyone was enlivened and feeling the presence of the Lord in the kirtan. आज सुबह जो गुरु पूजा के समय में दिव्य कीर्तन हुआ तो मैं देख पाया कि सभी लोगों ने उस दिव्य कीर्तन के माध्यम से भगवान की प्रत्यक्ष अनुभूति वहां पर की. So just imagine, by singing, by dancing, jumping up and down, calling out the name of the Lord, the whole universe is satisfied. You become satisfied. तो दिव्य कीर्तन करते हुए और उसमें उछलते हुए नृत्य करते हुए सारा जो संसार है वो दिव्य जो भाव हैं उनकी अनुभूति कर सकता है. And this is Vrindavan Dham, that the Lord is present where the devotees are glorifying him. तो ये वृंदावन धाम में भगवान वहां पर उपस्थित होते हैं जहां पर उनके शुद्ध भक्त उनका गुणगान करते हैं. Srila Prabhupada was living in Radha Damodar next to Rupa Goswami's Samadhi and was perfectly satisfied just to stay in Vrindavan and meditate. तो और श्रील प्रभुपाद पाश्चात्य देशों में जाने के पहले जो श्री दामोदर मंदिर है उसके साथ में जहाँ पर रूप गोस्वामी जी की समाधि है उसके बगल में वहां पर रहते हुए वो पूर्ण रूप से संतुष्ट थे भगवान की सेवा करते हुए. But like Prahlad Maharaj, Dhruva Maharaj, Srila Prabhupada had a burning desire to serve his spiritual master and carry out the order of Chaitanya Mahaprabhu by preaching the message of Krishna consciousness all over the world. जैसे प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, उनकी तरह श्रील प्रभुपाद के हृदय में भी वो एक जो निर्देश उनके आध्यात्मिक गुरु का था कि पाश्चात्य देशों में जाकर सभी जो बद्ध जीव हैं उनका उद्धार करने के लिए वो वहां पर जाएं. तो ये श्रील प्रभुपाद ने किया. So if you want to speak nicely, you have to hear attentively, hear nicely. तो यदि आपको अच्छे से कुछ बोलना है तो पहले आपको ध्यान पूर्वक श्रवण करना पड़ेगा. The Srimad Bhagavatam, the Bhagavad Gita, Chaitanya Charitamrita, it's full of instructions and full of very, very satisfying, relishable spiritual understanding. और श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता और चैतन्य चरितामृत ये निर्देशों और ऐसे दिव्य विषयों से पूरित हैं जो हमको पूर्ण संतुष्टि प्रदान करते हैं. So just preparing for a battle on the battlefield, one needs proper armor and proper training. तो जो युद्ध भूमि में है उस युद्ध भूमि में सही से युद्ध करने के लिए हमको अस्त्र शस्त्र की शिक्षा की आवश्यकता होती है. And the proper armor means that to keep always the association of devotees and to hear and chant about the glories of the Lord. तो सही संग का अर्थ है कि हमेशा हम लोग भक्तों के संग में रहते हुए भगवान की जो दिव्य गुण हैं उनका श्रवण करते रहें. Yes, the one shloka Krishna Varnam Trisha Krishnam Sango Pangastra Parashadam Jagnai Sankirtan Priyar Yajanti Hi Sumeda Saha. Those who are intelligent worship Chaitanya Mahaprabhu and his associates who are giving us, who come with the weapon of the holy name. So this is the process of purification for this age, the chanting of the Lord's holy name. तो
श्रीमद् भागवतम में बताया कि जो सुमेधसा होते हैं, जो बुद्धिमान होते हैं, वो भगवान चैतन्य द्वारा दिया गया जो ये युग धर्म है, जो पवित्र नाम का जो शस्त्र है, उसको दिया हुआ है। तो ये जो प्रक्रिया है, इसको वो अपने जीवन में धारण करते हैं। If you think about billions and billions of lifetimes, now we finally have the human form of life and the good fortune to come to the Krishna consciousness movement. We should consider ourselves, greatly fortunate. कई कई करोड़ों करोड़ों योनियों के बाद में हमको ये अवसर अभी प्राप्त हुआ है कि हम लोग ये जो कृष्ण भावनामृत जो संघ है, भक्तों का संघ, इसमें आए हैं। तो हमको अपने आप को बहुत बहुत भाग्यशाली समझना चाहिए। Maya makes us believe that by our efforts we will make everything okay. तो माया हमको भ्रमित करती है कि हम अपने प्रयास से सब कुछ को ठीक कर लेंगे। But we cannot control growing old, getting diseased, and dying, and forced to take birth again. लेकिन हम लोग नियंत्रित नहीं कर पाते हैं कि हम लोग वृद्ध होते हैं, हमको रोग आता है, हम लोग मृत्यु को प्राप्त करते हैं और फिर पुनर्जन्म होता है। तो हम लोग कुछ भी रोक नहीं पाते। And getting out of the material world is very difficult. इस भव सागर से बाहर निकल पाना ये बहुत बहुत कठिन है। Because we have such strong attachment to body, family, nationality. क्योंकि हमारा बहुत ज्यादा आसक्ति अपने शरीर से, परिवार से, अपने देश से होती है। And these are natural. Mother Yashoda loves Krishna. Nanda Maharaj loves Krishna. Family is everything for them. So we don't give up family, but we engage family in Krishna consciousness. जिस प्रकार से माता यशोदा, नंद बाबा वो भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं, उसी प्रकार हमको भी आवश्यकता नहीं है अपने परिवार का त्याग करने की। लेकिन हम लोग सब मिल करके हम लोग भगवान की सेवा में युक्त हो सकते हैं। When we understand that Krishna is the supreme proprietor, everything belongs to Krishna, and everything is meant for Krishna's pleasure, and that Krishna is everyone's friend, we engage in service wholeheartedly with that understanding. तो जब हम लोग ये जानते हैं कि जो कुछ भी इस सृष्टि में बना हुआ है वो भगवान की प्रसन्नता के लिए है और भगवान ही उसके नियंता हैं, उसके स्वामी हैं, तो फिर हम लोग ये प्रयास करते हैं कि हम लोग सब कुछ को भगवान की सेवा में युक्त करने का प्रयास करें। One thing he has achieved success by taking birth in a high family or being very, very wealthy or beautiful. All these are not going to help one to surrender to the Lord. तो उच्च परिवार में जन्म होना, उच्च शिक्षित होना, सुंदरता होना, यही अपने आप में सहायता नहीं करते हैं कि हम लोग भगवान के शरणागत हो जाएंगे। If Krishna wants to protect you, no one can harm you. If Krishna, go ahead. यदि भगवान हमारी रक्षा करना चाहते हैं तो कोई भी हमको कुछ कष्ट नहीं दे सकता। But if Krishna wants to kill you, no one can protect you. और यदि भगवान हमसे हमारा ये शरीर लेना चाहते हैं तो कोई भी इसको नहीं बचा पाएगा। But one is never killed because Krishna is ever existing, and we are also always existing eternally as Krishna is eternal. तो जैसे भगवान शाश्वत हैं वैसे ही जीवात्मा शाश्वत है, तो हमको कोई मार नहीं सकता।
And Krishna is equal to everyone, just like in the battle of Kurukshetra, by Krishna's mystic potency, everyone on both sides of the battlefield could see Krishna face to face, and they all attained their swarup, original spiritual bodies. जिस प्रकार हम लोग कुरुक्षेत्र के युद्ध में देखते हैं कि जो दोनों सेनाएं थी, जब उन्होंने भगवान को प्रत्यक्ष अपने समक्ष देखा तो सबको उच्च गति की प्राप्ति हुई। One may think, well, why doesn't Krishna just give everyone, that? He does not interfere with our independence. तो कोई सोच सकता है कि क्यों भगवान सबको फिर उच्च गति या मुक्ति प्रदान नहीं करते हैं, लेकिन हमको ये समझना है कि भगवान हमारी जो सूक्ष्म स्वतंत्रता है उसके हस्तक्षेप नहीं करते। But this was Krishna's plan to establish the Pandavas on the royal throne to give proper guidance to society. लेकिन ये भगवान की योजना थी कि वो जो दिव्य सिंहासन है उसमें पांडवों को स्थापित करें, जिससे कि उनके माध्यम से सारी जो प्रजा है उसको सही जो पूरी व्यवस्था है वो उनको प्राप्त हो सके। Even all the different demons in Vrindavan that were killed achieved the favor of Krishna. तो जितने भी असुर जो भगवान के द्वारा वृंदावन में मारे गए, तो उनको भगवान के द्वारा जो इच्छित स्थान है वो प्राप्त हुआ। So this is Lord Chaitanya's Sankirtan Leela, that anyone who participates in this Krishna consciousness movement is eligible to return home back to Godhead. ये भगवान चैतन्य की संकीर्तन लीला है, और जो कोई भी इस कृष्ण भावनामृत में भाग लेगा तो वो उसको ये योग्यता या अधिकार मिल जाएगा कि वो भी भगवत धाम की प्राप्ति कर सकता है। Devotee is naturally humble and thinks himself unqualified to receive that kind of benediction or mercy of the Lord. तो भगवान के भक्त विनम्र होते हैं, तो वो कभी भी अपने आप को ऐसा योग्य नहीं मानते हैं कि उनको भगवान की ऐसी जो कृपा है वो मिलती है। Just like Rupa Goswami's nectar of instruction, glorification of Radha Kund is there, but the first verse is Vacho Vegam Manasa Krodha Vegam Jiva Vegam Udara Pasta Vegam. तो रूप गोस्वामी जी ने उपदेशामृत में जो राधा कुंड है उनका गुणगान किया है, उनके बारे में बताया है, लेकिन उसी उपदेशामृत में जो प्रथम श्लोक है उसमें वो पहले शिक्षा देते हैं कि हमको जो मन का वेग है, वाणी का वेग है, क्रोध का वेग है, इन सब पे नियंत्रण करना है। So we should follow the instructions given by Srila Prabhupada. Just like the Goswamis, they took all the scriptures and condensed it for the benefit of humankind. तो हमको श्रील प्रभुपाद के जो निर्देश हैं उनका हमको पूर्ण रूप से पालन करना है। जिस प्रकार से जो गोस्वामी हैं उन्होंने सारे जो शास्त्र हैं उनको सार रूप में हमारे लिए उन्होंने उनको बनाया। Under the order of Srila Bhakti Siddhanta, Srila Prabhupada took the Acharyas' commentaries and produced Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita, Chaitanya Charitamrita for our enlightenment. तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज उनके आध्यात्मिक गुरु के निर्देश से श्रील प्रभुपाद ने सभी आचार्यों की जो टीकाएं हैं उसके अनुसार श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता और चैतन्य चरितामृत की रचना की। So today is a very special day. We should remember that Krishna has his love for Srimati Radharani, and Srimati Radharani has intense love for Krishna, so much that
Chaitanya Mahaprabhu appeared just to understand what is that love. तो आज का दिन बहुत विशेष है। भगवान श्री कृष्ण वो पूर्ण रूप से श्रीमती राधा रानी को प्रेम देते हैं और राधा रानी का पूरा प्रेम वो भगवान श्री कृष्ण के लिए है। और इसी राधा का जो प्रेम है भगवान श्री कृष्ण के लिए, उसको समझने के लिए भगवान चैतन्य के रूप में भगवान श्री कृष्ण स्वयं अवतारित होते हैं, उस रस को जानने के लिए। The Lord appears and many instructions are given, but this Lord Chaitanya Mahaprabhu is celebrated Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namani Gaurtashe Namaha. He's giving the highest benediction, immediate pure love for the Lord in a simple process. तो भगवान के आविर्भाव का उद्देश्य होता है कि भगवान हमको कई शिक्षाएं देते हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु का जो अवतार हुआ वो सभी अवतारों में सबसे महावदन्याय, सबसे दयालु अवतार है, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा जो एक विषय है उसको बहुत सरल रूप से अपनी कृपा से सभी अयोग्य, जो इस कलयुग के हम लोग अयोग्य जीव हैं, हमको भी उन्होंने उसको दिया। Srila Prabhupada established temples and deities all over the world. श्रील प्रभुपाद ने जो विग्रह हैं और मंदिर हैं उनकी स्थापना पूरे विश्व में की। And he empowered all his sincere followers to distribute his books. और श्रील प्रभुपाद ने शक्ति प्रदत्त किया उनके जो गंभीर अनुयायी हैं कि उनकी पुस्तकों का वितरण सर्वत्र करें। Because these books are the words of the Supreme Lord. क्योंकि ये जो शास्त्र हैं ये स्वयं भगवान की वाणी है। So we become soldiers on behalf of the Lord Chaitanya Mahaprabhu. तो हम लोग भगवान चैतन्य के प्रतिनिधि के रूप में हम लोग उनके सैनिक हैं। So we need this enthusiasm, determination, patience, and always keep association with devotees. तो हमको ये पूर्ण दृढ़ संकल्प और दृढ़ विश्वास, इसके साथ में हमको भक्तों का सहयोग करना चाहिए। Your faith will increase and your unwanted bad habits will decrease. तो हमारा जो विश्वास है वो दृढ़ होगा और जो हमारे अनावश्यक जो अनर्थ हैं वो दूर होंगे। And when all the anartha nivriti goes away, then we can experience parang drishtva nivartate, a higher taste. तो जब ये सब अनर्थों की निवृत्ति हो जाएगी तब हमको क्या प्राप्ति होगी? परम दृष्टा निवर्तते, कि जो परम वस्तु है वो हमको तब दृष्टिगोचर होगी। So this is the beauty of Krishna consciousness. Prabhupada is present with us in his teachings. ये जो कृष्ण भावनामृत है ये उसकी दिव्य सुंदरता है। और श्रील प्रभुपाद वो अपनी शिक्षाओं के माध्यम से हमारे बीच उपस्थित है। Wherever you are in your home, or you should have a facility to hear the lectures of Srila Prabhupada regularly. तो जहाँ कहीं पे भी आप हैं, चाहे आप अपने घर में भी हैं, लेकिन आपके पास में वो सुविधा होनी चाहिए जहाँ पर आप नियमित रूप से श्रील प्रभुपाद द्वारा दिए गए जो प्रवचन हैं उनका श्रवण कर सकते हैं। And just like we have a scheduled Mangal Arti Guru Puja class, you should have your designated time when you're reading. Start from the beginning, Srimad Bhagavatam, Gita, and read progressively every day with enthusiasm. तो जिस प्रकार से हम लोग समय निर्धारित करते हैं मंगल आरती के लिए, गुरु पूजा के लिए, कथा के लिए, उसी प्रकार हमको क्रम से जो श्रीमद् भागवतम या शास्त्र हमको क्रम से पढ़ने के लिए हमको कुछ योजना बनानी चाहिए। No one forgets to eat. कोई भी भोजन करना नहीं भूलता।
प्रसाद पाना कोई नहीं भूलता। Srila Prabhupada said when he was working very hard with publishing, he would chant 4 rounds before every meal so that all his rounds were finished nicely. तो श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि जब श्रील प्रभुपाद बहुत सारी सेवाओं में युक्त थे, अकेले सारा प्रचार का कार्य, पुस्तक वितरण, जो पत्रिका बनाते थे उसका कार्य, और उनके परिवार की भी जिम्मेदारियां, तो श्रील प्रभुपाद हर समय जब वो प्रसाद ग्रहण करते थे उसके पहले वो 4 माला करते थे और इस प्रकार से फिर वो अपनी मालाएं पूरी करते थे। So rules and regulations should not be seen just as ritualistic adherence, but we should, by following these rules and regulations, it will awaken a spontaneous attraction. तो जो नियम होते हैं उनको हमें खाली वो कर्म कांड की तरह नहीं लेना चाहिए, लेकिन इनका पालन करने से ये हमको हमारे अंदर में वो जो तीव्र एक भक्ति के लिए जो आवश्यकता होती है, उस इच्छा को ये बनाते हैं। And you sincerely pray to the Lord in the heart, and He can remedy any challenges that we might have for making further progress in Krishna consciousness. तो यदि हम लोग अपने हृदय में बहुत गंभीरता पूर्वक से भगवान से प्रार्थना करेंगे तो भगवान हमारी रक्षा करते हैं, और जो कोई भी बाधा हमको भक्ति के मार्ग में यदि आती है तो भगवान उसको स्वयं दूर करते हैं। The Pandavas, Queen Kunti, Srila Prabhupada, by their example, showed that despite so many difficulties, so many challenges, their only shelter was Krishna's lotus feet. तो हम लोग पांडवों के जीवन में, कुंती महारानी के जीवन में, श्रील प्रभुपाद के जीवन से या अन्य उदाहरणों से हम लोग देखते हैं कि उनके जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां थी, लेकिन क्योंकि उन्होंने पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण के चरणों का आश्रय लिया था, तो उनको भगवान हर स्तर पे रक्षा करते हैं, और उनको उनके द्वारा जो इच्छित जो वस्तु है उसको भगवान देते हैं। So our difficulties and challenges are significant, but Krishna can help us to resolve them by following his pure devotee. तो हमारी जो कठिनाइयां हैं ये हमारे जीवन में रहती हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का आश्रय लेने से भगवान उनके शुद्ध भक्तों के माध्यम से हमको सहायता करते हैं कि हम लोग उन सब कठिनाइयों से बाहर निकल सकते हैं। In 1993, I finished renovating my house next to the new temple in Coconut Grove, Florida. तो 1993 में प्रभु जी बता रहे हैं कि उनका जो घर था, जो मंदिर के पास में था, वहां पे उन्होंने अपने घर का जीर्णोद्धार किया, जहां पर कि नारियल के वृक्ष थे और ये सब था। I brought my 2 sons and my wife to Vrindavan, and we thought, what are we doing? Vrindavan's so ecstatic, let's live here. प्रभु जी कह रहे हैं कि उस समय वो अपने 2 पुत्रों के साथ में और जो उनकी सहधर्मिणी है माता जी, उनके साथ में वृंदावन में आए, और उन्होंने जब वृंदावन का दर्शन किया तो उनको इतना अच्छा लगा, उन्होंने कहा कि क्यों नहीं हम लोग यहीं पे रह लें। So we packed up 11 trunks and we moved to Vrindavan and put our boys in Gurukul. तो प्रभु जी कह रहे हैं कि हमने 11 जो बक्से हैं उसमें सारा कुछ अपना सामान भरा, वृंदावन आ गए, और जो उनके 2 पुत्र हैं उनको गुरुकुल में शिक्षा के लिए भेजा। And until you spend some significant time in Vrindavan, it's difficult to fully appreciate the spiritual vibrations of the holy Dham. जब तक हम लोग जो एक उचित समय वृंदावन में हम लोग व्यतीत नहीं करेंगे, तब तक हम लोग जो इस धाम की जो महिमा है उसको हम लोग नहीं समझ पाएंगे।
But at the same time, Vrindavan can be established wherever we are preaching and practicing Krishna consciousness sincerely. लेकिन वहीं पर जहाँ कहीं पे भी हम लोग यदि गंभीरता पूर्वक अपनी सेवा कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण की सेवा में युक्त हैं, तो वहां पर ही हम लोग जो वृंदावन धाम है उसको प्रकट कर सकते हैं, उसको वृंदावन धाम बना सकते हैं। Srila Prabhupada recommended that we don't spend our whole lives just working. There has to be a time to retire. So come to Vrindavan Dham, retire in hearing and chanting the glories of Krishna. श्रील प्रभुपाद ने कहा कि हमको अपना पूरा जीवन अपने जो भौतिक कर्तव्य हैं उसी में व्यतीत नहीं करना चाहिए। हमको एक समय पे सेवा निवृत्त हो करके और श्रीधाम वृंदावन ऐसे जो स्थल हैं वहां पर जाके भगवान की सेवा में युक्त होना चाहिए। So today I will take special note of all of you during my drops of Radha Kund and pray that we can all awaken pure love for Srimati Radharani and Krishna. तो प्रभु जी हम सबको आशीर्वाद कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जब वो राधा कुंड में जाएंगे तो वहां पे हम सब लोगों के लिए भी प्रार्थना करेंगे कि भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी का जो प्रेम है वो सब हमको हमारे लिए भी जागृत हो। तो वी आर सो थैंकफुल टू यू प्रभु जी, थैंकफुल टू। We have so much more, but I think time is getting short. If there's any questions or comments, but you'll have to come and spend more time with us in Vrindavan. We can discuss more nectar. तो प्रभु जी कह रहे हैं कि कहने के लिए तो बहुत कुछ अभी भी बाकी है, लेकिन क्योंकि समय की हमारे पास सीमा है, तो प्रभु जी कह रहे हैं कि यदि हमको और जो ये मधुर जो रस है इसका आस्वादन करना है, श्रवण करना है, तो सब लोगों को प्रभु जी वृंदावन में आमंत्रित कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वहां पर आइए और वहां पे बहुत अच्छे से उनके साथ में बैठ के श्रवण करिए। So thankful to you, Prabhu. Thank you. Is the timing okay? I don't have a clock or anything. Just तो प्रभु जी कह रहे हैं यदि किसी का कोई प्रश्न है तो वो अपना हाथ यदि देंगे तो वसंता प्रभु जी फिर उनको अनम्यूट करेंगे। So if any devotee has any questions, so please raise your hand. So Vasanta Prabhu will unmute you and you can ask to Prabhuji. So this is a very auspicious day, month, and the association from Sridham Vrindavan. So take this golden opportunity, ask your questions. many times no questions means that everyone's fully satisfied. Yes, yes, Prabhu. तो प्रभु जी कह रहे हैं कि जब कभी कोई प्रश्न नहीं होते हैं तो ये निश्चित होता है कि सब लोग बहुत संतुष्ट हैं। तो कोई हरे कृष्णा है, बसंत प्रभु आप इनको अनम्यूट कर सकते हैं। कैन यू अनम्यूट हिम? यस, हरे कृष्णा कौन है वो अपना प्रश्न कर सकते हैं। प्रभु जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु। दंडवत प्रणाम। This is Vaibhav here. Thank you so much, Prabhu, for giving such wonderful insight of today's auspicious occasion. Just have a small question. Since we are in Kanhaiya Desh, very far away from Shyam Kund and Radha Kund, it's a very, very auspicious occasion today. How do we say, and we are longing to be there in Vrindavan. But unfortunately, because of the situations, we are not able to be there. How can we make sure that from mind, heart, we are there? What can we do to make sure? Because yes, we can definitely hear wonderful pastimes of Lord. But apart from that, what more can we do so that we can definitely get the blessings of Srimati Radharani and Lordships? If you can just help us and light, Prabhu. Hare Krishna, Dhanad Pranam. So You want to? yes. प्रभु जी का प्रश्न है कि
हम लोगों की बहुत इच्छा है कि इस कार्तिक में और विशेष रूप से आज के दिन हम भी वहां पर हों, लेकिन हम लोग कैसे मन से और हृदय से वहां पर रह सकते हैं। तो निश्चित रूप से हमारे पास में अवसर है कि हम लोग श्रवण और कीर्तन के माध्यम से जो भगवान की सेवा है उसमें युक्त रह सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भी और क्या कर सकते हैं जिससे कि हम लोग पूर्ण रूप से इस भाव में रह सकते Just like on Srila Bhaktivinoda Thakur's appearance or disappearance day, I get inspired to read his songbook, Sharanagati, his feelings, his revelations, and it brings me closer to Srila Bhaktivinoda Thakur. तो प्रभु जी कह रहे हैं कि जिस प्रकार से जब श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर महाशय उनका आविर्भाव या तिरोभाव दिवस होता है, तो उस दिन उनके द्वारा जो शरणागति के जो भजन हैं वो पुस्तक लिखी गई है। तो उस दिन वो उस शरणागति से उनके द्वारा दिए गए जो भजन हैं उनका कीर्तन करते हुए, मनन करते हुए, तो वो ये समझते हैं कि वो इससे उनके बहुत नजदीक जा रहे हैं। So make the time, if you have the time, read the Nectar of Instruction. It'll prepare your mind with proper instructions by Rupa Goswami and also glorifying Radhakund, Shyamakund in a very glorious way. तो यदि हमारे पास में समय है तो हम लोग उपदेशामृत को पढ़ सकते हैं, जिससे हम लोग जो रूप गोस्वामी जी द्वारा उसमें निर्देश दिए गए हैं उनको हम लोग मनन कर सकें, समझ सकें। और उसके साथ साथ में जो राधा कुंड की महिमा उन्होंने उपदेशामृत में दी हुई है, तो उसको भी हम लोग और समझ करके और उसका और गुणगान कर सकते हैं। Also, as I mentioned, Mother Devi Shakti gave a very beautiful class all about Radhakund, Shyamakund, and all the gopis and sakis. So you listen to that attentively because she serves Srila Prabhupada, and Prabhupada is empowering his devotees to continue spreading the message of Godhead. तो आज प्रभु जी ने शुरू में ही ये हम लोगों को बताया था कि जो आज की गुरु पूजा है बहुत भव्य रूप से, तो वो परम पूजन सचिनंदन महाराज द्वारा हुई। और उसके बाद में जो आज इस विशेष विषय पे कक्षा थी वो जो देवी शक्ति माता जी हैं उन्होंने दी। बहुत अच्छी कक्षा हुई है और वो हमको YouTube पे मिल जाएगी। उसमें उन्होंने जो गोपी हैं, सखी हैं, उनके बारे में बताया। श्रील प्रभुपाद की शिक्षाओं को उन्होंने बहुत सुंदर रूप से बताया है। तो ये भी हम लोगों के पास में अवसर है, उसका श्रवण कर सकते हैं। Although there are many books that describe the Radha Krishna Leela, we're Rupanugas, we're followers of Rupa Goswami. So read the Nectar of Instruction. Read the whole thing today. It'd be very good. तो बहुत सारी ऐसी पुस्तकें हैं जिसमें राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है, लेकिन क्योंकि हम लोग श्रील प्रपादानुग हैं या गौड़ीय परंपरा में आते हैं, तो आज के दिन हम लोग जो उपदेशामृत है इसको हम लोग पठन कर सकते हैं। We should not jump too quickly, walk before we run. So just appreciate with great gratitude and humility that Srila Prabhupada's given us understanding of our position as servant and the glorious position of Radhakund, Shyamakund. तो हमें जो उच्च विषयों की जो शास्त्र हैं सीधा उसके ऊपर में नहीं जाना चाहिए। पहले हमको जो हमारे स्तर के विषय हैं, जो ऐसे शास्त्र हमको दिए हुए हैं जिसमें हम लोगों के अंदर में जो विनम्रता है, जो अन्य आवश्यकता है भक्ति में प्रगति के लिए, उन गुणों को हम लोग विकसित करें एक सेवक के रूप में। और इस प्रकार से फिर हम लोग जो हमारी अपनी गति है उससे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। Any other questions, comments? और किसी की कोई जिज्ञासा है, प्रश्न है?
तो यदि कोई किसी का प्रश्न नहीं है तो हम लोग यहाँ पे आज की कथा को विराम देंगे. एंड we are sure, Prabhuji, you will be busy in so many services, so we'll also not like to take your much of time, especially today. Now you will be rushing to Radha Kund and many other